Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be fine. Walaikum salam, ma'am. So we have studied regarding the different types of menus and how to do the costing of the dishes. So any question from the previous lecture? Is there any question from the previous lecture? No, ma'am. Okay, so today we are going to start with the second component that affects the menu planning. Okay, second factor that affects the menu planning. ठीक है हमने पढ़े थे factors that affect the menu planning उसमें second factor start करना the people being served. So today we'll start with the people being served. Obviously, the people whom we serve different kinds of the food. So they matter a lot because whatever we are planning is for those individuals. So it is very important to consider what kind of individual you are going to serve. ठीक है अगर हम लोग फैमिली मील प्लानिंग की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कल्चर एंड एथनिक बैकग्राउंड ऑफ एन इंडिविजुअल. We must know about the cultural and ethnic background of an individual. अगर हम family meal की बात करें चाहे हम लोग restaurant की बात करें तो family foods need to be served along with new ones. Sometimes ऐसा होता है आपकी family में भी होगा. For example, if you make spaghetti at home or you make macaronis or even the white sauce pasta, such kind of the Chinese dishes, um, different kinds of the other variety of dishes जो आपके पास normally घर पे नहीं बनती. It might be easy for the younger to accept those kind of dishes, but what about the older age one? तो क्या वो spaghettis, macaronis बहुत रेयर ऐसे होंगे जो accept करते हैं, but most of them do not eat those kind of food. Um, they're not fond of such kind of food. Have you observed at home? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही रेयर होंगे जो अपने ट्रेडिशनल फूड से अपने कल्चरल फूड से हटकर फूड खाते होंगे. ठीक है हर एक का कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड होता है अकॉर्डिंग टू विच वी एटलीस्ट अगर हम न्यू फूड्स ट्राई कर रहे हैं तो कुछ फेमिलियर फूड्स जो होते हैं जो यूज टू होते हैं वो जरूर बनाने चाहिए. ठीक है इसे जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं कुछ आपकी बेसिक डिशेस होती हैं कुछ आप न्यू ट्राई करते हैं समथिंग इनोवेटिव समथिंग न्यू ताकि वो आप प्रेजेंट कर सकें ताकि लोगों को देखा ऑब्वियसली हम लोग हम शो करने के लिए कि यस वी नो समथिंग डिफरेंट वी मेड तो हम लोग बनाते भी हैं. ठीक है तो कल्चरल और एथनिक बैकग्राउंड ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है रिगार्डिंग द डाइनिंग फैसिलिटीज ऑल्सो देयर आर सम इंडिविजुअल्स नाउ डेज ऑल्सो जो दस्तरखान लगा के नीचे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं जबकि ट्रेंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में चेंज हो गया डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खाते हैं. ठीक है सो डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल किस तरह के लोग आ रहे हैं अगर बहुत जैसे कि हमारी ओल्डर एज या पुरानी फैमिली से आ रहे हैं तो वी प्रेफर टू सिट एट द फ्लोर टू ईट. ठीक है अगर हमें लगता है कि जैसे कि अगर फैमिली में आपकी बड़ों के बॉस आ रहे हैं या कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो डिफरेंट क्लास से हैं जो चेयर्स पे बैठ के या डाइनिंग टेबल बैठ के खाना पसंद करते तो उस तरह की सेटिंग की जाती है. तो इवन डाइनिंग फैसिलिटीज जो हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उनके हवाले से कि वो किस तरह की डाइनिंग फैसिलिटीज में मील को लेना पसंद करते तो वो चीजें इसीलिए इवन आप थ्रू आउट दी वर्ल्ड जाएं तो आपको जैसे कि हम लोग चाइना जाएं या कहीं और जाएं तो हमें हलाल हराम इन चीजों का कंसेप्ट होता है. इवन वी आर यूज टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पाइसेस तो एशियन मार्केट्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो अवेलेबल होती हैं जो इस तरह के स्पाइसेस सॉसेस और इंग्रेडिएंट्स को सेल करती हैं. So it means that at every corner of the world, wherever the meal is being served, where the meal management is done, meal planning is done, the culture and ethnic background of different kinds of individual actually is considered. Okay? And religion, very important. जैसे कि if you have um, invited some Hindus or Sikhs at your home, so they do not eat non-veg.
They do not eat non-veg. So if you serve that, that will be against their ethical values. You are preparing a meal for them, so you should prepare something vegetarian, something they, even in the non-veg, they could eat. Similarly, if they have called you at home, you should prepare something that you could also eat, और जो आपके customs के हिसाब से बना हो, ठीक है? Next is special dietary needs. When we plan a meal according to the individual, specific dietary needs of individuals are usually considered. For example, आप देखें sometimes घर में अगर diabetic patient आ जाते हैं, for example कोई बुजुर्ग आते हैं वो diabetic होते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि चाहे वो शुगर के साथ लेंगे या विदाउट शुगर लेंगे, या फिर आप हम लोग ये भी करते हैं sometimes, ये तो पूछ लेते हैं, ठीक है, या हम लोग ये भी करते हैं कि साथ जो है शुगर पॉट सर्व करते हैं हम, नॉर्मली जो है वो चाय में चीनी नहीं डालते बिल्कुल. हैव यू सीन ऑल दीज थिंग्स? यस मैम. ठीक है ना. और स्पेशल डाइटरी नीड स्पेसिफिकली जो काम होता है वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए होता है और हॉस्पिटल कैफेटेरिया में होता है कि उनको पता है कि यहाँ पे पेशेंट्स हैं, वो यहाँ से उनका खाना जाता है, तो उनकी डाइटरी नीड्स को फोकस करते हुए जो डाइटिशियन की रिस्पॉन्सिबल होती है इस हॉस्पिटल में कि वो हर एक क्लाइंट के लिए जो चार्ट बनाता है, तो वो प्रॉपरली चार्ट जो होते हैं वो नोटिस बोर्ड होता है कैफेटेरिया में, वहां पे लगाते हैं, रूम नंबर लिखा जाता है, रूम नंबर में कौन सा वार्ड में कौन सा रूम नंबर है, फिर कौन से उसमें कौन से बेड पे पेशेंट, इसका वो चार्ट बना के गए हैं. तो उसी चार्ट के हिसाब से जो हॉस्पिटल कैफेटेरियाज होते हैं वो खाना तैयार करते हैं, मील तैयार करते हैं, ठीक है. एंड फूड एलर्जीज एंड इंटॉलरेंस नीड टू बी कंसिडर्ड ऑफ द इंडिविजुअल. एजेस, अब एज के हिसाब से मील प्लानिंग डिफरेंट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल मील प्रोग्राम कर रही हूँ, स्कूल लंच प्रोग्राम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, स्कूल के बच्चे होंगे, ठीक है ना. अगर यही चीज मैं कॉलेज में कैफेटेरिया ओपन कर रही हूँ तो मेरा टारगेट है कॉलेज एज के स्टूडेंट. तो अगर मैं बात कर रही हूँ नर्सरीज की जहाँ पे इन्फेंट्स भी आते हैं, तो इन्फेंट्स की एज डिफरेंट होती है. मैं उनको अब इन्फेंट्स को तो मैं सैंडविच नहीं खिला सकती, कि खिला सकती हूँ? नो मैम. नहीं, उनको सॉफ्ट फूड्स चाहिए होते हैं, दे नीड सॉफ्ट फूड, दे नीड फिंगर फूड्स. तो उनका क्राइटेरिया, उनकी प्रिपरेशन के लिए उनकी फूड का क्राइटेरिया मेरे लिए डिफरेंट हो जाएगा, और जितनी एज चेंज हो जाती जाएगी तो उसके हिसाब से जो मेरी मेन्यू प्लानिंग होगी वो भी डिफरेंट होती जाएगी. क्लियर हो गया? So according to the people, according to the needs, according to culture, ethnic background, according to their ages, our meal planning will be different. अब जैसे for example आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं और उनके साथ अगर आपने फुल विद फैमिली बुलाया हुआ, उनके बच्चे भी साथ में, तो यू विल बी फोकसिंग ऑन द एडल्ट्स या बच्चों के लिए भी कुछ आइटम्स होंगे उसमें? बच्चों के लिए मैम. What kind of items would you prefer? मैम नगेट्स, फ्राइज. नगेट्स, फ्राई, समथिंग दैट विल बी लेस स्पाइसी, ठीक है. मीठे में भी कुछ ऐसी चीज जो बच्चों के लिए सॉफ्ट हो, उनके लिए उनकी इजीली एडिबल हो, तो इस तरह की चीजें, एक कुछ आइटम्स जो होते हैं हमने बच्चों के हिसाब से भी रखनी होती है. मैं ये बात नहीं करी कि आप उस टाइम इन्फेंट के बारे में सोचेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द मदर, लेकिन आपकी पूरी कोशिश होगी कि अगर बच्चे भी साथ में हैं तो सम आइटम्स एट द स्टार्टर एटलीस्ट शुड बी देयर, जो बच्चे इजिली जो है कंज्यूम कर सकें, ठीक है. Next is the menu planning according to the resources available. The most important thing is the resources available. Money, सबसे important हमारे पास expense, then time. Time हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिनमें हमारा वक्त कम लगे. Human power बहुत important है. Equipments available हैं कि नहीं है, इन चीजों को देखते हुए मेन्यू प्लान करते हैं. We'll be studying few examples of these resources available and their role in the meal planning. Let me change the presentations. So when talk about the resources available, money, सबसे important factor menu planning, the most important factor I would like to say is the economics. Yeah, we can say that our expenditure.
फूड कॉस्ट प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन स्टेइंग विद इन दी बजट। इवन हम लोग पार्टीज अरेंज करें, जब हम लोग किसी को घर पे इनवाइट करते हैं, हम अपने बजट को देखते हैं। यू इफ यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड, तो आप ऐसी चीजें रखें जो आपके बजट में आती हैं। You do not want to be burden on your parents more. Already they are giving you lots of money. They are spending lots of money on your requirements. If you're inviting your own friend for a party, you need to be in budget. ठीक है? You have to think about that. अगर मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला रही हूँ तो मेरी पार्टी के एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए। ये नहीं कि कल मेरे पेरेंट्स ने भी पार्टी की, उन्होंने तो इतना पैसा लगाया, उन्होंने ये आइटम्स रखे हैं, मैं जब पार्टी कर रही हूँ तो मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा। वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद आवर एल्डर्स। तो अपनी एज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम पार्टी के एक्सपेंसेस को जो है वो या मील के एक्सपेंसेस को जो है फूड के प्राइसेस के हिसाब से मैनेज करना सीखते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट एवरी इंडिविजुअल हैज टू डू। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आप सीजनल फूड्स नहीं खरीदते, आप नॉन सीजन आइटम्स को लेकर आ रहे हैं और उसे आप जो ड्रिंक्स बना रहे हैं, उसे आप कुछ चीजें बना रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल कॉस्ट यू मोर। तो कहीं और से आपको जो है अपना किसी और फूड को कट डाउन करना पड़ेगा। व्हाई नॉट टू यूज सीजनल फूड्स एंड ऐड समथिंग डिफरेंट? तो आप वैरायटी भी ऐड कर पाएंगे कम बजट में, अगर आप सीजनल चीजों को इस्तेमाल करें। ठीक है, the estimated cost for the liberal plan is not quite twice। अब हम अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाते हैं हर चीज का। हमेशा जब हम प्लानिंग करते हैं तो कॉस्ट होता है, फिर उसमें देखते हैं कि जो चीजें हमारे बजट के अंदर नहीं आ रही तो वो हम कट डाउन करते हैं। हाउ टू मेंटेन बजट ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले होती है कि आप जो प्लान करते हैं वो सीजनल फूड्स हो। दूसरा, मार्केटिंग डिसीजन। अगर आपको बल्क में चीजें लेकर आनी तो आपकी मार्केट डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर बल्क में सब्जी लेकर आनी है तो आप सब्जी मंडी जाएंगे, ना कि अपने क्लोज बाय मार्केट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोज बाय मार्केट में जो होता है आपके पास कॉस्टली चीजें होती है। बल्क में अगर आप लेके आएंगे सब्जी मंडी से या इस तरह की मंडियों से, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट जो आपका काफी हद तक जो है रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको बल्क में नहीं चाहिए, थोड़ी सी चीजें चाहिए, और मंडी सब्जी मंडी जो है वो दूर है, और जो कन्वीनियंट मार्केट है जो करीब होती है वो कॉस्टली दे रही है, लेकिन अब क्या है कि थोड़ी सी चीज लेके आए, थोड़ी सी चीज के लिए हम लोग अपने साथ जो नजदीक मार्केट है उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमें थोड़ा सा कॉस्ट पड़े, लेकिन वहां पे हम क्या बचा रहे हैं? हम अपने बाकी रिसोर्सेज बचा रहे हैं, हम अपना टाइम बचा रहे हैं दूर जाने का। हम अपना वहाँ पे टाइम के साथ साथ जो पेट्रोल लगेगा, जो बाकी फ्यूल रिसोर्सेज लगेंगे, हम उनको भी बचा रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द फूड वी रिक्वायर, द टाइप ऑफ द फूड वी रिक्वायर, हमारे मार्केट डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, बिकॉज वी नीड टू सेव अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। तो हर एक चीज का एक अपना रोल है। ठीक है, एंड फूड हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे हम लोग वेस्ट को मिनिमम रख सकते हैं, और जब वेस्ट मिनिमम होगा तो हमारे कम से कम जो है एक्सपेंसेस होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें हैंडलिंग के हिसाब से, जो कि आप मील तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जो इनएक्सपीरियंस्ड घर में होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस कटिंग का नहीं होता, हैंडलिंग का नहीं होता, तो जब अपने बल्क में खाना तैयार करना, तो तब उनको जो है फूड हैंडलिंग के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, क्या करते हैं, इनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, तो किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं जो वेस्टेज को लीड करते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं? नमक ज्यादा कर देते होंगे। कभी नमक ज्यादा कर देते हैं, कभी ऑयल ज्यादा कर देते हैं, कभी बर्तन ही तोड़ देती हैं शीशे के। यस मैम। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैंने इन एक्सपीरियंस को सिर्फ एक डिश लाने को कहा था, एंड खाना तो वेस्ट हुआ, इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट माय डिश, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द यूटेंसिल दैट पर्सन ब्रोक। तो इस तरह के जो हादसे हैं, फिर वो उन इन एक्सपीरियंस में, खासकर जब हड़बड़ाहट होती है, टाइम कम होता है, तो हमें फिर ध्यान देना है कि किसको फूड हैंडलिंग के लिए किसको कौन सा काम देना चाहिए। ठीक है, तो लेस एक्सपेंसिव मीट कट्स जो होंगे उन पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। नाउ ये हमारे पास है कि हाउ टू सेव योर मनी। Then we have next topic, that is the other resource, time. Time saving strategies should be used. जैसे कि वर्किंग लेडीज के लिए खासकर टाइम सेविंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो वर्किंग लेडी हैं तो वो ज्यादातर करती हैं। जैसे कि
फ्रोजन आइटम्स घर में रखते हैं। अचानक से कोई आ गया, फ्रोज समोसे, फ्रोज चीजें उठा के तो उनको फ्रीजन जो फ्रोजन होती हैं आइटम्स उनको उठा के तो फ्राई किया और सर्व कर दिया। तो इस तरह की टाइम सेविंग होती है, स्ट्रेटेजीज होती हैं। या फिर मदर क्या करती है, पहले से घर पे प्रिपेयर कर लेती है और उनको फ्रीज कर लेती है फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक। या कटिंग कर लेती है सब्जियों की, कट करके तो उनको पैकेज में पैक करके तो वो भी जो है वो फ्रीज कर देती हैं। जो साग होते हैं उनको बॉईल करके पानी निकाल के फ्रीज कर देती हैं। आई थिंक ये वो लेडी स्पेसिफिकली करती हैं जो कि वर्किंग होती हैं। लेकिन आजकल तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेडीज ये काम कर रही हैं। ठीक है, this is how they save time. But when they try to save time, actually they are increasing the cost also. So next is energy, whether human energy हो या आपकी डिफरेंट अदर रिसोर्सेज की एनर्जी हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, हीट इज एनर्जी, दैट इज द गैस। तो ह्यूमन एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कई कंपनीज में जो मेन्यू प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है वो अपने ह्यूमन पावर को काफी हद तक जो कंप्लीट यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो तो वी नो दैट अगर बेसिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी यूज होती है एज कम्पेयर हम लोग रेडी टू ईट फूड जो बाजार से लेके आते हैं। तो लेकिन ऐसा एनर्जी रिजर्व के बारे में सिर्फ वही सोचते हैं जिनके लिए पैसा कोई मैटर नहीं रखता। अगर हम बात करते हैं लो इनकम सोसाइटी में, तो उनके लिए फिर मनी मोर इम्पोर्टेंट जाती है एज कम्पेयर टू द एनर्जी रिजर्व। ऐसा ही होता है। Yes, ma'am. देखिए, हमें अब हमने डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया कि रिसोर्सेज टू बी यूज, उसमें मनी भी है, उसमें टाइम भी है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी है, उसमें बाकी एनर्जी भी है। लेकिन अब इन सब में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशंस आ रही हैं। आप किन को डील करें, किन के लिए मील प्लान करें एक्चुअली। अब डिफरेंट सोसाइटी के लिए डिफरेंट मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल लो इनकम सोसाइटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बजट। मिडिल क्लास के लिए बजट इंपॉर्टेंट है। अपर क्लास के लिए ना बजट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए टाइम, फॉर देम द टाइम इज मनी। तो फिर वो टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू द मनी। तो डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट मेंबर्स के हिसाब से, डिफरेंट इंडिविजुअल के हिसाब से आपकी जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन या उनकी जो प्रायोरिटाइजेशन होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वो चेंज हो जाती है। तो यू हैव टू थिंक कि आप जो प्लान करें मील प्लान वो किन लोगों के लिए है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल वैल्यू। दैट मील प्लान चेंज अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल वैल्यू। Now, change or the factors that affect the meal planning, one the other one is the nutrition value. होना तो यही चाहिए, बिकॉज हेल्थ इट शुड बी द मेजर कंसर्न। अगर आप हम सब आजकल देखें कोविड की सिचुएशन में, तो यस, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन शुड बी द प्रायोरिटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड we have observed that the intake of the junk food has decreased to a certain extent in our country also, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल, बट स्टिल काफी हद तक जो है जो बाहर का खाना है काफी लोगों ने कम कर दिया। लेकिन उसके अगेंस्ट फिर सर्टेन चीजें आ चुकी हैं, जैसे कि फूड पांडा जो घर बैठी आपको चीजें सर्व कर रही है। तो बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है, बट नाउ इस टाइम पे स्टेज पे ऑप्टिमल न्यूट्रिशन शुड ऑलवेज बी द प्रायोरिटी, हमेशा होनी चाहिए, लेकिन अब तो ज्यादा। और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन किस तरह हम लोग लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय यूजिंग माय पिरामिड फॉर सर्विंग। वैरायटी को ध्यान में रखते हुए, एडिक्वेसी को ध्यान में रखते हुए, मोर फिश मोर पोल्ट्री को ध्यान में रखते हुए कि हमने इस तरह के आइटम्स जो इंक्लूड करने हैं जो कि जिनमें फैट्स कम हो, जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, जो न्यूट्रिएंट डेंस हो। ठीक है, तो माय पिरामिड में ये चीजें बताई गई हैं आपको कि ऑयल स्पेरिंगली यूज करें, स्टीमिंग करें, पोचिंग करें, आप उनको डीप फ्राइंग की तरफ ना जाएं। अगर होल ग्रेन्स लेंगे तो सारे के सारे डीप आइटम भी आपको मिलते हैं। हर्ब स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं फॉर द फ्लेवर पर्पसेस, जिससे कैलोरीज भी ऐड नहीं होगी और हर्ब स्पाइसेस जो है वो खाने में इंटरेस्ट भी इंक्रीज करते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाने हैं तो रिड्यूस्ड फैट यूज करें। घर में अगर योगर्ट भी बना रहे हैं तो उसको अगर झाग मम्मी लगाती भी है तो उससे मलाई हटा के जो दूध होता है उससे उस पर झाग लगाए।
So such kind of technique should be used at home as well as in the restaurants and the hospital cafeterias in order to give optimal nutrition to individual. आजकल इसका ट्रेंड ज्यादा हो गया है. Nowadays individuals are actually considering the rule of nutrition. They want to enhance their immunity. They might be asking you different kinds of questions regarding the uh, increasing their immunity also. ठीक है. कोई चेंज आप लोगों की डाइट में आए बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड? Any student? Let me ask question. Let me ask by name. Asia Hayat. Yes, ma'am. What kind of change has come in your diet before and after COVID? कोई change observe की है? मैम पहले हॉस्टल में रहते थे, वहाँ की डाइट खाते थे, तो अब घर है तो थोड़ा बहुत चेंज तो है. दैट इज नॉट. हॉस्टल की डाइट में घर की डाइट में क्या चेंज है? मैम न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी हो गई है, क्योंकि वहाँ हॉस्टल का खाना इतना अच्छा नहीं होता, घर का अच्छा होता है, प्योर होता है. What about the outings? नो मैम, आउटिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो गई. Outing खत्म हो गई. And what about the home delivery? नो मैम, नो होम डिलीवरी, सिर्फ घर का खाना खाते हैं. और पहले कितना खाते थे बाहर का? मैम हॉस्टल में रह के तो खाते ही रहते हैं, बाहर से डेली खाते थे. Almost daily खाते हैं. So this is how the changes have occurred in सिर्फ आप लोगों की डाइट में नहीं, अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों की डाइट में इस तरह की चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं because of the increased importance of the nutrition here, and that's also because of the COVID. ठीक है. So nutrition should be given importance in the meal planning. Next we have food selection. This is a different topic, food selection. हम बात करते हैं फूड सिलेक्शन की. लोग आपके मील को तभी पसंद करते हैं जब उसकी ब्यूटिफिकेशन होती है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है. ठीक है. फूड सिलेक्शन इज मेड अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द फूड. उसकी ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से उसकी सिलेक्शन होती है, और उसकी ब्यूटिफिकेशन करते हैं उसके सेंसरी पैरामीटर्स जो हमने प्रैक्टिकल में भी पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो. ठीक है. याद है किसी को हमने सेंसरी पैरामीटर्स पढ़े थे मंडे को ही? पहले आंखें देखती है, नाक सूंघता है, फिर जुबान चखती है. ऐसे ही होता है? यस मैम. Yes, ma'am. ये नहीं डायरेक्टली आप खा लेंगे, देखेंगे आंखें बंद करके खा लेंगे. जब ऐसा हुआ आंखें बंद कर ली और बस खा लिया जो भी है? No, ma'am. नो मैम. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं खाने को, उसकी अपीयरेंस हमें अपील करती है, तो हम लोग उसको ऑब्वियसली बात है इसका फ्लेवर अरोमा जब हमारे नाक में आती है, खासकर जब आपके घर में शिमला मिर्च पकी है, कई लोगों को शायद पसंद नहीं है, बट स्टिल उसकी जो अरोमा होती है, जिसकी जो स्मेल होती है, दैट इज सो एपेटाइजिंग कि हम लोगों के मुंह में उस टाइम ऐसे ही पानी आता है, भूख लगना शुरू हो जाती है. ठीक है. तो द कलर, that is appearance, the color, the flavor, the aroma and the taste, that actually increases the appetite of an individual. So food selection इसी बेस पे होती है, जो दिखने में अच्छा हो, जो खाने में अच्छा हो. And अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स, हाउ टू इंक्रीज द कलर ऑफ द फूड. कोई मुझे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कलर्स का क्या मतलब है, हम दिखने में किसी खाने को कैसे अच्छा बना सकते हैं? मैम प्रेजेंटेशन में डिफरेंट कलर्स यूज किए जाए. Yes, जैसे कि अगर मैं बात करूं व्हाइट सॉस पास्ता, एज द नेम इंडिकेट्स व्हाइट सॉस पास्ता है, कितना ब्लैंड कलर है उसका, व्हाइट. अब उसी को इन्हांस करने के, कलर को इन्हांस करने की उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से की जाती है जैसे कि उसके अंदर ऑलिव्स ऐड कर देते हैं, या उसकी प्लेट की डेकोरेशन इस तरह की जाती है यू वुड लाइक टू ईट इट, अदरवाइज वो ब्लैंड होता है. अब से एक आपके सामने वो रखा जाए और एक आपके सामने स्पैगेटी रखी जाए जो कलरफुल होंगी, इफ द पर्सन डोंट नो अबाउट द टेस्ट, न्यू आपके सामने वो दोनों चीजें रखी हैं, ऑब्वियसली द वन with the more colors will be attractive for the individual, right? Yes, अब ma'am.
कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं? द मोस्ट यूजफुल थिंग टू ऐड द कलर्स आर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Even the peel of the fruits, the peel of the vegetables are used to give colors, give beauty to the product. For example, I showed you some pictures of presentation here. जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कलर सिंपल सी डिशेस में ऐड किए गए. लेट्स सी. गूगल इमेजेस हैं जस्ट. Is this visible? Yes, ma'am. If we look at these colors, देखिए अगर हम लोग ये देखें, फूड प्लेटिंग द आर्ट ऑफ फूड, दिस वन. अब इस चीज को सिर्फ देखें, ग्रीन कलर ऐड किया, रेड कलर ऐड किया, बेसिक चीज ये खानी है आप लोग. So just using the fruits and vegetables, they are adding color to such kind of bland thing. और इसकी प्राइसिंग फिर देखें कितनी ज्यादा हो. Look at this one. अब इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी. अब ना स्पैगेटीज में हम ये टमाटर आप खाएंगे कच्चे? No, ma'am. नहीं खाएंगे. ये जो साइड पे आपके लिए ग्रीनरी लगाई गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ या उसको ऊपर डेकोरेट किया गया, प्रेजेंटेशन की गई है, द वे इट हैज बीन प्लेस्ड, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ये कलर के लिए ऐड किया गया. सिर्फ अगर आपके लिए ये स्पैगेटी लगा दिया, नथिंग एल्स शुड बी एडेड टू इट, और एक तरफ ये प्लेट हो आपके सामने, तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी मोर अट्रैक्टिव. In order to give the beauty to the food products, it is very important कि उसकी presentation पे ख्याल दिया जाए. और presentation का हर किस ये मतलब नहीं होता कि आप इनमें चीजों को वेस्ट करें. जो चीज आपने यूज की होती है उस खाने के अंदर, उसी को इस्तेमाल करें. जैसे कि अगर आपने मिक्स वेजिटेबल बनाई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप उसको प्लेट में प्रेजेंट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दी हांडी और प्रेजेंटिंग इट इन दी प्लेट. या आपने कोई सैंडविच बनाया है, ठीक है, सैंडविच बनाया फॉर एग्जांपल, वेजिटेबल सैंडविच बनाया, अब वो उसमें आपने खीरा ऐड किया है, उसमें आपने सैलेड बाकी ऐड किए हुए, ठीक है. अब आप उसकी प्लेटिंग करें स्ट्रॉबेरी के साथ, तो क्या स्ट्रॉबेरी सैंडविच में यूज हुई थी? No, ma'am. नहीं यूज हुई. तो अब अगर आपने उसमें स्ट्रॉबेरी यूज कर दी, तो जो जजेस होते हैं यहाँ पे, हम कॉम्पिटिशन भी करवाते हैं, तो पता है क्या कहते हैं, जब स्ट्रॉबेरी का यूज नहीं था, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दिस, यू आर एडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट टू द डिश. डू नॉट एड एक्स्ट्रा अमाउंट टू द डिश. जितनी आपने इसकी अमाउंट प्राइसिंग की थी वो करें. आप प्लेटिंग के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो स्ट्रॉबेरी यूज करें, उन जो खाएंगे भी नहीं शायद, आप उसकी अमाउंट को ऐड करवा रहे हैं कस्टमर के ऊपर. बेटर है कि अगर आपने इसमें खीरे यूज किए हैं, तो उनकी पील तो होगी, आप उनको जाया कर देते हैं, करते हैं जाया. Yes, ma'am. उन्हीं की पील से रोल्स बना के तो आप डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लावर्स की फॉर्मेशन दे सकते हैं. तो यानी जिस चीजों को आपने यूज किया है, उन्हीं की पील्स को लेके या जो उसी में से बच जाता है, उन्हीं को यूटिलाइज करके आपने डेकोरेशन करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है, प्लेटिंग करनी है. डू नॉट यूज एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैवंट यूज्ड देयर. ठीक है. ओके. तो we by looking at these pictures, I can only say that we are using fruits, vegetables to add color to the food, because it will increase their acceptability by the customer. Okay, it will increase their sale by the customer, it will increase their appetite also. So look at these presentations, look at the simple fries, the plates they use, the containers they use are also very important in the presentation. Colorful plates करना जो चाहें तब भी बहुत important. Okay, this was the color.
Sorry, because of the network issue. Is my voice clear? Yes, ma'am. Okay. So we were talking about the color. So how you can add color to the food हमने पढ़ लिया. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको देखें. The shell of half a grapefruit, even the shells यूज करके ड्राई फ्रूट की जो shells होती हैं, इनको भी यूज करके हम लोग कलर्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है. फ्लेवर वेरी इंपॉर्टेंट. हम वैरायटी ऑफ फ्लेवर को ऐड करते हैं. आजकल का जो एरा है वो भी है फ्लेवर्स का. हम आगे आपको मैं एक प्रैक्टिकल जरूर करवाने की कोशिश करूंगी. ट्राइजेमिनल सेंसेशन हम लोग कहते हैं, जहां पे हम मल्टीपल फ्लेवर्स को ऐड करते हैं एक ही फूड में. ठीक है. जैसे कि अगर आप स्पैगेटी को ले लें एग्जाम्पल अगेन, उसमें मल्टीपल फ्लेवर्स को ऐड किया गया होता है. ठीक है. जैसे कि वेजिटेबल्स का अपना फ्लेवर होता है, जो उसमें मसाला स्पाइसेस जो यूज किए जाते हैं उसका अपना फ्लेवर होता है, जो उसमें सॉसेस यूज की जाती हैं उनका डिफरेंट फ्लेवर होता है. तो एट वन व्हेन यू ईट इट यू गेट अ मल्टीपल अमाउंट ऑफ द फ्लेवर्स देयर. ठीक है. सॉसेस ऐड करते हैं फर्दर उनकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए. ठीक है. So variety of flavors are available in the market and they actually excite your palate. Palate means हमारी जो एपेटाइट को एनहांस करने की पैलेट को एक्साइट करते हैं. वहां से जो है फर्दर वो सेंसरी जो बर्ड्स हैं हमारी, इनको फर्दर एक्टिवेट करते हैं. तो हमें जो फ्लेवर्स हैं हर एक चीज का अलग अलग मिल रहा होता है. ठीक है. लेकिन जितना हम लोग डिफरेंट फ्लेवर ऐड करेंगे उतना ही एक खाने का जेस्ट जो है, जेस्ट हमने जेस्टी का वर्ड सीखा था. ठीक है. जो जेस्ट है खाने का, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक बर्स्ट ऑफ फ्लेवर, बर्स्ट ऑफ इमोशंस जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करती हैं, वो खत्म हो जाता है अगर हम एक ही काइंड का फ्लेवर हर वक्त यूज करते थे. जैसे घर में अगर मम्मा एक ही मसाला यूज करती है हमेशा खाने में, अ टाइम कम्स एंड बिकम बोर्ड ऑफ दोस काइंड्स ऑफ फूड. ठीक है. So variety of flavors, variety of food should be added together to increase the zest of the food. Then we have aroma. The aroma of food is experienced first in the nasal passage, obviously. और जैसे ही वो nasal में जाता है तो वो aroma जो है हमारे appetite को भी stimulate करता है. तो these three are very important: color, aroma, and the flavor, which enhances the appetite of an individual. So we have to, when we work on different flavors, automatically the aroma of the food enhances. और जब aroma और taste मिल जाते हैं तो that gives you the flavor. Flavor is a combination of aroma plus taste. Temperature, yes, very important. Okay, सूप आप ठंडा पियेंगे गर्म पियेंगे? गरम. ठंडा क्यों नहीं? नो मैम. ठंडा क्यों नहीं? अच्छा नहीं लगता? नो मैम. क्यों अच्छा नहीं लगता? वही चीज है सेम, बस ठंडा है. मैम दांतों को लगता है जाके. अच्छा, फिर वो दांतों को लगता है आपके. मैं चिल्ड की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि रूम टेम्परेचर का कोई इशू नहीं. मैम कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है, उसकी थिक हो जाता है विस्कस. कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है. आपको जो जेस्ट मिलता है, मल्टीपल फ्लेवर जो हॉट टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, वो फ्लेवर जो हैं आपको लो टेम्परेचर पे यानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो नहीं मिले. प्लस जो फ्रेग्रेंस, जो अरोमा बीइंग एट हायर टेम्परेचर आपको मिल रही होती है, जिसकी वजह से एपेटाइट इंक्रीज होता है, लो टेम्परेचर पे वो फ्रेग्रेंस कम हो जाती है. ठीक है. तो वी लाइक सम फूड टू बी सर्व्ड एज हॉट एंड वी लाइक सम फूड्स, कोल्ड फूड टू बी सर्व्ड एज कोल्ड. फॉर एग्जांपल, वी लाइक डिजर्ट्स or the sherbets or the beverages to be served cold. जैसे कि कोक चिल्ड पीते हैं आप लोग कि रूम टेम्परेचर की? वॉइस कैन गिव मी बेटर आंसर नाउ. कोक चिल्ड पीते हैं आप कि रूम टेम्परेचर की? चिल्ड. वाई चिल्ड? रूम टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसकी गैस कम हो जाती है और एक एक्चुअली फ्लेवर आता गैस है. कम नहीं होती. हाँ, कोल्डनेस की वजह से जो है आपकी एक जो सेंसेशन होती है, जो नर्वस सिस्टम को जो सिग्नल जाते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, रैपिड होते हैं.
तो जो बर्स्ट ऑफ इमोशंस क्रिएट करते हैं, दैट गिव्स दैट सेंसेशन, जो चिल की वजह से जो एक टैंगी एक जेस्टी सेंसेशन आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. So temperature is one of the way that add can add a particular flavor to the food also. ठीक है, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं जो एक्चुअली में पेनफुल समटाइम देती है क्रिएशंस, लेकिन वही चीज को यहाँ पे टेम्परेचर यूज करता है और आपको एक नई फ्लेवर, एक नया जो फीलिंग है वो क्रिएट करवाता है, जिसकी वजह टेम्परेचर भी फूड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो द कोल्ड थिंग्स नीड टू बी सर्व कोल्ड एंड द हॉट थिंग्स शुड बी सर्व हॉट. ठंडा खाना भी कोई नहीं खाता, गरम आइसक्रीम भी कोई नहीं खाता. So every food has a particular temperature to be served at, which will be liked because of the different flavors they give at different temperature. Sometimes temperature spiciness की वजह से भी होता है. कभी आपने hot chilies के साथ या ज़्यादा chilies ऐड कर दी हो, खाना ठंडा भी हो तो वो आपको hot ही लगता है. ऐसे होता है, ठीक है. So spices can also create temperature, increase the temperature of the body also. So this kind of things are really done. अब texture, किसी को भी रफ कोर्स टेक्सचर पसंद नहीं है. अब कस्टर्ड की बात करें, कस्टर्ड के अंदर अगर लम्स होते हैं तो वो कस्टर्ड किसी को पसंद नहीं आता. So every food has a particular kind of texture, mouth feel जिसको हम लोग कहते हैं. It should have that kind of texture only. बहुत ज़्यादा चीवी ना हो, बहुत ज़्यादा रबड़ी ना हो. तो हर एक का अपना एक टेक्सचर होता है, that has to be maintained also, that should be acceptable. So these are the factors that affect the beautification of the food. And size and shape, आप कोशिश करते हैं कि जब भी आप even salad भी काटें तो everything should be in equal size. ठीक है, या आप लोग उनको डिफरेंट वेराइटी के फॉर्म में गार्निशिंग करने के लिए आप साइज चेंज भी कर सकते हैं. तो साइज एंड शेप, द वे इट इज कट आल्सो मैटर्स अ लॉट. ठीक है, ऑब्वियसली आपने भी इसको बाइट करके ही लेना होता है, बट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ साइज और शेप जो होते हैं वो ज़्यादा अपील करता है एज कम्पेयर कि हम किसी और टाइप से खाएं. तो एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट. क्लियर? Yes, ma'am. Variety, creativity, these all are the methods that actually add to the beautification of the food products. Availability is very important. हमने बात की थी कि आप सब फूड एक तो सीजनल अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं. खाना शायद आपकी सीजनल अवेलेबिलिटी भी, दूसरा हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटी भी साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? मैम लाइक किसी सिटी में कुछ होता है और किसी में कुछ देर से आता है, या मतलब जो हमारे मरी वगैरह के इलाके हैं इनमें कुछ और फूड्स होते हैं, हमारे पास कुछ और होता है और सच नहीं है हमारे. अच्छा, एक्सेस दो किस्म की होती है. ठीक है, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि मार्केट में वो अवेलेबल है. ठीक है, अवेलेबिलिटी का मतलब कि मार्केट में वो अवेलेबल है, सीजनली वो अवेलेबल है, या जो मर्जी प्राइस पे लेकिन वो अवेलेबल है. एक्सेस दो वजह से होती है. एक होती है फिजिकल एक्सेस, एक होती है इकोनॉमिकल एक्सेस. मार्केट में शायद आपके अवेलेबल है लेकिन आपके घर से वो दूर पड़ रहा है, यानी कि फिजिकल एक्सेस नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है वहां जाने के लिए, आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास वो दूर पड़ रहा है, आपको आसानी से वहां पे फिजिकल एक्सेस इसको कहते हैं, जहां आपके पास मार्केट में है, आपके पास पैसा भी है, बट जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू गो टू दैट मार्केट टू परचेज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ. तो फिजिकल एक्सेस. एक होती इकोनॉमिकल एक्सेस. फिजिकल एक्सेस भी है बट वो इतनी कॉस्टली है कि आपके पास इतना पैसा नहीं इसको खरीद सकते. बिल्कुल करीब है आपके घर के, अवेलेबल भी है, बट यू डोंट हैव इकोनॉमिकल एक्सेस टू परचेज दैट फूड. ठीक है, तो दीज आर द आल्सो फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट योर प्लानिंग, कि फिजिकल एक्सेस और इकोनॉमिकल एक्सेस दोनों होनी चाहिए. फूड अवेलेबल तो है बट दोनों होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस फूड के बेस पे जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं. क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. So variety and creativity, the more creative you are, the more variety you add to your foods, obviously the more interesting the person will be to accept that particular kind of the product. So I end up my lecture of today here.
If you have any queries, you can ask. If you have any queries, you can ask, beta. Any problem, beta? No, ma'am. Okay. Then I'll take my leave. Okay, then Allah Hafiz everyone. Take care. Allah Hafiz.